عرض کرتا ہوں کہ اتنے بے رحم نہ بنیے، ترس تو کھائیے ذرا. جی اتنے بے رحم نہ بنیے، ترس تو کھائیے ذرا. ہم کہاں تیری گلی میں روز آیا کرتے ہیں. جی میری آنکھیں ترس گئی دیدار کو تیرے. میری آنکھیں ترس گئی دیدار کو تیرے. ہم کہاں روز تجھے کھڑکی پہ بلایا کرتے ہیں. واہ کیا ہم کہاں روز تجھے کھڑکی پہ بلایا کرتے ہیں. اور عرض کرتا ہوں کہ میں نے رکھا تھا تیرے راستے پر ایک خطر گلاب. اچھا میں نے رکھا تھا تیرے راستے پر ایک خطر گلاب. اس راستے پر وہ خطر گلاب آج بھی. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ہمارے ایک دوست جو کہ ایک لیکچرر بھی ہے اور انہیں شاعری لکھنے کا شوق ہے. تو عاطف سر، آئیے ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر، بتائیے آپ کے بارے میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ جی الحمدللہ. عاطف سر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ہم نے ساتھ میں کچھ وقت کے لیے کام بھی کیا ہے، ساتھ میں کالج پر ہم نے پڑھا ہے. عاطف سر انگلش کے لیے اور میں نے کیمسٹری کے لیے. تو ہمارا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ماشاء اللہ اس ٹائم. جی ماشاء اللہ. اور جب سے ہمارا دوستانہ بھی ہے تو ہم ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے اور بہت سارے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں عاطف سر بھی ہم سے. تو بتائیے سر عاطف سر. جی سب سے پہلے تو حذیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو لینا کے قابل سمجھا. اور مختصر میرے بارے میں یہ کہ حال ہی میں 1 سال پہلے اردو ہائی اسکول جونیئر کالج بلڈھانا میں میرا تقرر ہوا ہے ایز اے انگلش ٹیچر ہائی اسکول پر. اور اردو شاعری وغیرہ بھی میں کر لیتا ہوں جیسا سر نے آپ کو بتایا ابھی. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ سر کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اچھے اچھے کامنٹ سے نوازیں. جی سر شکریہ. اور سر نے جس طرح سے بتایا، ہمیں باہر سے بھی سننے ملا کہ سر بہت ہی اچھی شاعری کر رہے ہیں، ہر کامن ورڈس اس میں یوز کرتے ہیں. اور مطلب جو ینگسٹرس ہے ان کے لیے بھی بہت کچھ لکھتے ہیں شاعری کی شکل میں. تو میں سر سے کچھ کویسچنس پوچھوں گا شاعری سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے سر؟ تو آپ نے شاعری ہی کیوں چنا؟ آپ نثر بھی لکھ سکتے تھے. جی دیکھیے، شاعری میں اور نثر میں بہت زیادہ فرق ہے. جی ٹھیک ہے. نثر کو اگر انگلش میں کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروس. جی جی. اور غزل جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ پویم. ہاں. تو کافی چیزوں کا جو ہے ان دونوں الگ الگ جو اعتبار سے اپنی جگہ پر بہت بلند ہے، لیکن شاعری میں کافی چیزوں کا ہمیں جو ہے احتیاط کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے اپن جس کو رائمنگ ورڈس. جی جی ٹھیک ہے. رائمنگ ورڈس ہے اور پارٹس آف اسپیچز وغیرہ کا بھی اس میں. اور سب سے شاعری میں جو عمدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے احساسات کو، جذبات کو اور تصورات کو جی اپنے کچھ الفاظوں کے جو چنندہ الفاظ ہوتے ہیں جی ان کو شعر کے ذریعے جو پروتے ہیں. جی اور اس طرح جو ہے وہ شعر کی ایک مالا تیار ہوتی جی ہے. جی بس یہی ہے. اور نثر میں ایسا ہوتا ہے کہ نثر میں ہم مطلب نثر کوئی بھی کر سکتا ہے. جی نثر کوئی بھی لکھ سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے. آپ ایک کوئی بھی ایک ٹاپک چن لو. جی. ٹھیک ہے. اس کا تقرر کر لو اور اس ٹاپک پر آپ تھوڑی سی جو ہے معلومات حاصل کر لو. یا آپ کو آلریڈی اس پر ہو بھی سکتی ہے معلومات، تو آپ جو ہے اس پر نثر تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کیسے الفاظ یوز کر رہے ہو، کتنا وہ لیندی ہوگا، کتنا لمبا ہوگا یا شارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے جو اس میں آپ کے جو خیالات ہیں وہ کس طرح ہوں گے. لیکن جو غزل ہوتی ہے اس میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کافی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. باریک بینی سے جو ہے غزلوں کو لکھنا پڑتا ہے، اپنے تصورات کو بیان کرنا پڑتا ہے. جی جی. اور ادیب قافیے وغیرہ سے آپ کو پتہ ہوگا تو قافیہ جو بنتا ہے اور جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے غزلوں میں. ٹھیک ہے. اور غزل جو ہے ڈائریکٹ جا کر جو ہے ہمارے دلوں پر لگتی ہے. جی جی. اس کے جو شعر ہوتے ہیں، کوئی کسی کوئی شخص ہے اور اس کی زندگی پر جو ہے کسی چیز کا اثر پڑا ہو. جی جی. ٹھیک ہے. جیسا آپ ابھی جو ہے شاعری جو ہے رومانٹک شاعری چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. بڑے عاشقانہ مزاج کی شاعری چلتی ہے آج کل. آپ دیکھ رہے ہیں. جی جی. اسٹوڈنٹس کا تو بہت زیادہ اس میں پربھاؤ اثر ہے. تو بس وہی ایک بات ہے. ٹھیک ہے. تو شعر کے ذریعے جو ہے ہم ان کے دل کو جو ہے ٹچ کر سکتے ہیں اور اپنی بات جو ہے سامنے تک رکھ سکتے ہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا جو ہے اس میں فرق ہے. جی. نثر میں دراصل ہم جیسے ریسرچ پیپر لکھتے ہیں کسی ٹاپک کو لے کر، چھوٹا سا ایک
सिनॉप्सिस ले लिए, जी कोई टॉपिक है समझो कि जैसा कि चैट जीपीटी, जी उसके बारे में लिख रहे हैं आजकल लोग, जी तो उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हो गया समझे नसर, नस ये उसका डेफिनेशन हो गया। और शायरी में हमें जो सेम मिलते जुलते वर्ड, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड, जी, उसको rhyming मैच words, करना काफी होता हो है। गया। जी सर। दूसरा सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि शायर धोखा खाए हुए होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने भी कोई धोखा खाया है? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, मंजर नहीं है। असल में हर शायर से जी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये मालूमात है, मेरे जहन में आता है, तो हर शायर से असल में ये सवाल किया जाता ही है। जी सर। ठीक है, हम सबका आमतौर पर जो हमारी जो ज़ानत है, वो ज़ानत ही ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई शायर बना है जी सर। और वो शायरी करने लगा है, तो ठीक है, तो हमारे जहन में सबसे पहले एक बात एक तयशुदा हो जाती है और एक फिक्स हो जाती है हमारे जहानत में कि इसने जो है धोखा खाया है। हाँ, ठीक है, जब भी जो है ये गज़लें वगैरह लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हमारे जो केस है, मेरा जो केस है, इसमें मंजर कुछ अलग है जी कि बचपन से जो है मुझे शायरी का शौक़ था, अच्छा सुनना और पढ़ना वगैरह। जी सर। और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे शायर शोरा को जो है उर्दू की बुक में, जैसे मैं पढ़ता था, उर्दू मीडियम से था, तो काफ़ी सुना और उनको तशरीह भी किया, लेकिन कभी लिख नहीं पाया और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगा शेर शायरी मतलब। जी लेकिन जब मैं सोचा कि मुझे अब शायरी जो है लिखना है, उसकी तरफ मुतासिर हो गया मैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर शायरी लिखना स्टार्ट किया। तकरीबन 2 से 3 बरस हो रहे हैं कि मैंने शायरी स्टार्ट किया है। जी ठीक है, और जैसे मैं आपको बता दूं कि हर एक शायर जो पहला शायर बना है, नया नया शायर बना है, जी और उसकी गज़ल पहली जो होगी ना, हाँ हाँ वो एक ख्वातीन को लेकर अच्छा जी या इश्क आशिकी को लेकर और बेवफाई को लेकर ही होंगी। जी तो बस हमारी जो पहली गज़ल है वो भी कुछ इसी तरह है। जी सर। जी जी, तो ऐसा कोई नहीं है कि धोखा वगैरह मिला है, लेकिन हाँ ठीक है। सर से मैं तीसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि शायरी लिखना कहाँ से और कब से शुरू किया? जी अच्छा सवाल है। मैंने असल में शायरी, जैसा आपको अभी पहले बताया मैंने इससे पहले सवाल में, कि शायरी लिखना मैंने 2-3 साल पहले से स्टार्ट किया, लेकिन बचपन से ही शौक़ था इसको लिखने का। लेकिन सबसे मुतासिर और सबसे जो बात मुझे की और अहम ये था कि मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो मेरे यूट्यूब पर जो है सामने ही अहमद फराज साहब, जी बहुत बड़े जो है गज़ल, फराज अहमद फराज वो नहीं ये अहमद फराज जी सर। तो असल में मेरे वो बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट भी है, पसंदीदा भी है। तो अहमद फराज साहब की एक गज़ल थी, तो उसका शॉर्ट वीडियो मेरे जो है मोबाइल पर सामने आ गया। अच्छा जी, जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे शायरी का पहले से शौक़ था जी, तो बस उसको क्लिक करने की देर थी, और जो शेर था तो वो बहुत ज़्यादा जो है दिल पर लग गया, मुतासिर कर गया। वैसे हर शेर जो है मुझे करता था, क्योंकि मुझे शायरी पसंद है पहले से। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना शायरी जो है लिखी भी जाए, ना कि पढ़ा और सुना जाए। ठीक है, वो भी बराबर है, लेकिन अब लिखना भी चाहिए। जी जी, तो बस वहाँ से कोशिश थी। और पहली गज़ल याद आज भी है जी, तो ये मैंने अपनी कंप्लीट किया था। मुझे आज तक याद है कि मुझे इसके लिए आई थिंक 1 या 2 महीने लग गए थे गज़ल को लिखने के लिए, सेट करने के लिए। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो उन लोग का भी इसमें हाथ था, मैं उनको सुनाया करता था अपनी गज़लें वगैरह, जो भी शेर बन रही है, तो ठीक है वो दाद दिया करते थे। फिर मैं उनसे पूछता कि वाकई में सही अच्छा है शेर, या आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए? नहीं बहुत अच्छा शेर है। तो बस शुरुआत हुई गज़ल से, याद आज भी है, इस गज़ल से स्टार्ट हुआ। सर हम देखते हैं कि हम एक स्टूडेंट एज में रहते हैं, बाद में हम किसी चीज़ में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर डिग्री हासिल करते हैं, तो उस वो एज ऐसी रहती है, मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें समझ में आता है कि और कौन कौन सी चीज़ें में इंटरेस्ट है। जब भी आपको उसी एज में शायद समझ में आया होगा कि मुझे शायरी में इंटरेस्ट है। वैसे तो इंटरेस्ट पहले से आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन एक एज आने के बाद में वो पता चलता है कहीं ना कहीं कि नहीं ये भी है। डेफिनेट हमको ऐसा 100% लगता है कि ये एज में कि 100% हमें इसका शौक है, और ये अब हमें एज अ करियर या फिर एज अ मतलब शौक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मुझे लगा था, मैं 10वीं, जैसे मैं आपसे कहा 10वीं 12वीं भी उर्दू मीडियम से हुआ है, उर्दू स्कूल से आज जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जी। तो शेर काफ़ी पढ़े, शायर भी काफ़ी पढ़े जी, और लेकिन एक तशरीह की हद तक वो मामला रह गया। शेर पसंद आया नहीं आया, समझा नहीं समझा, आपको तशरीह करना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायर जो है वो माँ के पेट से शायर होता है। जी जी, ठीक है।
शायर अपनी माँ के पेट से शायर होता है, तो बस उसको इस बात का इल्म होना चाहिए, जी, ठीक है। और वो एक कुछ तो भी ऐसा बूस्ट करता है उसको, बूस्ट करता है, ठीक है। अपने अंदर में वो जज्बा होता है, वो जज्बा होता है कि अब मुझे शायरी करना है और अब ये वक्त है, ये सही वक्त है कि मुझे अब शायरी करना ही है, और वो बस लिखते जाता है। और देखिए पहले जो शायर होता है वो जैसे मैंने आपको बताया महबूब पर ही लिखता है। जी सर, मैंने भी वैसे ही किया जी। हाँ, ये बात और है कि वो महबूब कोई था नहीं, जी, ये सिर्फ तसव्वुरात है, मेरे ख्यालात है, जी, लेकिन जज्बात जो है हाँ, तो वो पुख्ता है, ठीक है, वो सही है। जी, और दूसरी बात कि गज़ल लिखने के पीछे यही है कि एक मकबूलियत मशहूरियत मुझे मिले, और जी, उर्दू अदब जो है और उर्दू लैंग्वेज जो है जी, तो ये आम और मकबूल हो। जी, आजकल जैसे हम सब देख रहे हैं कि उर्दू जो है काफ़ी, उर्दू का जो चलन है वो कम हो रहा है, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान का जो है बोलचाल कम हो रहा है, उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल कम हो रहा है, ठीक है। पहले कुछ मौक़ात होते थे, कुछ दोस्त लोग वगैरह मिलते थे, मोबाइल नहीं थे, ठीक है। पहले का जो ज़माना था, मैं आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा था कि कुछ मौक़ात पर ऐसा होता था कि चलिए भाई अब मौका अच्छा आप शेर सुने, सही बात है, ठीक है जी, बट आज वो बात ही नहीं रही है ना। जी सर, तो बहुत ज़्यादा उर्दू को जो है हमें संभालने की ज़रूरत है, वरना ये धीरे धीरे मिटते जा रही है और मिटते जाएंगी। तो बस इस मेरी गज़ल के ज़रिए जो है इस शहर में और हो सके तो इस देश में भी है उर्दू का जो चलन है वो दोबारा से, और गज़ल का खास तौर पर चलन मुझे लाना है। जी बस सर, ये एक सर बहुत ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात है कि सर इंग्लिश के लेक्चरर है और साथ में एक अपोजिट लैंग्वेज मानी जाती है कि भाई लोग उर्दू मीडियम से आकर इंग्लिश सीखते हैं, ये एक चलन है। तो सर इंग्लिश के लेक्चरर है और साथ में उनको उर्दू भी पसंद है, जी ठीक है। सर उर्दू में शायरी लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चौथा सवाल मैं सर से ही पूछना चाहूँगा सर जी कि आपके फेवरेट शायर और शायरा कौन है, फेवरेट जो आपकी पसंद है, पसंदीदा? असल में सवाल तो काफ़ी अच्छे हैं आपके पास जी सभी सवाल अच्छे हैं। देखिए हर शायर जी जिसने एक गज़ल भी तरमीम किया हो जी तो वो शायर मेरा पसंदीदा है। हर शायर अच्छा होता है अपने एतबार से, अपने हुनर के हिसाब से, जहानत के हिसाब से, उसके तसव्वुरात ख्यालात वो जो पेश करता है। जी लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मुतासिर किया है शायर ने, वो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अहमद फराज साहब है। जी आज आप हर एक आम आदमी को या हम शख्स को किसी को भी पूछेंगे तो वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का नाम लेंगे, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, जी सर, ज़ौक़ है, जी सर, अहमद फराज है, जी सर, ठीक है। तो मुतासिर है, ठीक है, अहमद फराज। और शायरा जैसे आपने बात करें जी सर, तो परवीन शाकिर है, हाँ परवीन शाकिर, जी जी परवीन शाकिर साहिबा जो है उनसे काफ़ी मुतासिर रहा हूँ मैं। जी जी, और उनकी एक जो गज़ल है छोटी सी, जी सर, तो उसके कुछ अशार जो है मतलब जैसे वो लिखते थे, जो तरीका था उनका लिखने का, उसमें मैंने भी थोड़ा सा मेरी जो गज़लात है उसमें उसका तरीका उनका जो है यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। जी सर। तो परवीन शाकिर जो बहुत बड़ी शायरा रही है जी, अभी उनकी वफ़ात जी जी इंतकाल हो चुका है। उनका एक शेर है जी सर, कि बताइए सर। नज़र करना चाहूँगा जी सर, परवीन शाकिर जी के अर्ज़ करता हूँ जी कि आँखों में रहा, ऑडियंस भी है, जी जी आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, जी कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जी, ये फूल तो हमें विरासत में मिले हैं, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात है। और ये फूल तो हमें विरासत में मिले हैं, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात है। और पत्थर समझता है मुझे अपना चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है। तो सर से मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछना चाहूँगा कि अब तक के आपने कितनी गज़ल लिखी है? जी अब तक तो मैंने 9 से 10 गज़लात जो है जी मुकम्मल कर चुका हूँ, और अभी हाल ही में एक नई गज़ल भी लिखने जा रहा हूँ मैं, जी क्यों करें हम, जिसका उन्वान है। लेकिन सबसे पहली जो गज़ल है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था महबूब के बारे में, जी तो उसके चंद अशार जो है आपकी नज़र करना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स के लिए भी, ठीक है जी कि अर्ज़ करता हूँ कि तेरे वो ख़त तेरी उसमें लिखी बातें जी मुझे याद आज भी है, जी तेरे वो ख़त तेरी उसमें लिखी बातें मुझे याद आज भी है, तू तो चले गई मगर तेरा ख्याल आज भी। क्या बात। सोचा था कि तुझे भूल गया हूँ मैं, सोचा था कि तुझे भूल गया हूँ मैं,
तेरे जिस्म की खुशबू मुझे याद आज भी है। जी बहुत शुक्रिया। और अर्ज़ करता हूँ कि मैंने रखा था तेरे रास्ते पर एक खतर गुलाब, अच्छा मैंने रखा था तेरे रास्ते पर एक खतर गुलाब, उस रास्ते पर वो खतर गुलाब आज भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो गरजते बादल जी और वो पानी की बूंदे, जी वो गरजते बादल और पानी की बूंदे, तेरा भीगते हुए मेरे पास आना मुझे याद आज भी जी। और एक मुकर्ररा शेर है कि जब मैंने तुझसे इज़हार ख्याल किया था, जी जब मैंने तुझसे इज़हार ख्याल किया था, तेरा शर्मा के वहाँ से चले जाना मुझे याद आज भी है। क्या बात है। और एक और शेर समाप्त कीजिए कि जब तसव्वुर किया था जी तुझे अपनी दुल्हन मैंने, जी जब तसव्वुर किया था तुझे अपनी दुल्हन मैंने, मुझे तेरे हाथों की मेहंदी में मेरा नाम याद आ। क्या बात है। एक और शेर है जी कि तेरे लिए लाया हुआ वो सिया रंग का लिबास, जी तेरे लिए लाया हुआ वो सिया रंग का लिबास, जी तेरा उसे पहन कर मेरे पास आना मुझे याद आज। क्या बात है। बहुत को तूने कहा था बिछड़ते हुए कि ख्याल रखना अपना, जी तूने कहा था बिछड़ते हुए कि ख्याल रखना अपना, जी देख तुझे तेरा तो ख्याल नहीं पर मेरा ख्याल आज। जी क्या बात। बहुत शुक्रिया। तो क्या हुआ कि तुम मुझसे दूर हो गई, कि क्या हुआ कि तुम मुझसे दूर हो गई, मुझे तो तेरा इंतज़ार आज भी है। जी क्या बात को लोग चाहे तुझे बेवफाई क्यों ना कहे, जी लोग चाहे तुझे बेवफाई क्यों ना कहे, जी मुझे तो तेरी बातों पर एतबार आज भी है। और लास्ट शेर सुनाऊंगा इस गज़ल का कि 100 गम ही क्यों ना हो ज़िंदगी में आतिफ़, जी 100 गम ही क्यों ना हो तेरी ज़िंदगी में आतिफ़, जी तेरे चेहरे की वो मुस्कान आज भी है। क्या बात क्या बात। तो आतिफ सर ने जो अशार जो ये आपके लिखे हुए हैं, जी जी ये मेरा खुद देखिए। याद आज भी है। देखिए तो एक जो बहुत ही अजीम शायर जो होते हैं, जिस तरह से वो लिखते हैं, जिन्हें एक आलमी सतह पर जो मुकाम हासिल होता है, उस किस्म की शायरी सर ने हमें सुनाई है। तो जी, बहुत ये शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ में इतने बड़े शायर जो फ्यूचर में जो जिनके नाम से हमारा शहर पहचाना जाएगा इंशाल्लाह, वो हमारे साथ बैठे हुए। हम दुआ करते हैं इनके लिए कि और ये कामयाबी हासिल करें और बड़े बड़े मुशायरे में अपना मुकाम हासिल करें। जी जी जी। तो जैसा कि सर ने जो शायरी सुनाए हैं, तो उसमें ऐसा लगा है कि सर रोमांटिक चीज़ों पर ज़्यादा बात करते हैं शायरी में। तो आपकी शायरी का टाइप क्या है? देखिए जी, शायरी जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा जी कि जो भी पहले गज़ल लिखता है, जो भी शायर, जो बड़े शायर गुजरे हैं या मैं हूँ या छोटे शायर है, जी ठीक है, वैसे मैं भी छोटे ही शायर हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है। तो शुरुआती दौर में उसकी जो गज़लें होंगी, तो आप तजुर्बा है, मेरा खुद का तजुर्बा है कि वो उसमें ख़वातीन का जिक्र करेगा, उससे रिलेट करेगा, उससे रिलेटेड ही जो है अपनी गज़लें लिखेगा, इश्क, आशिकी, बेवफाई वगैरह वगैरह। तो मेरा वैसे कोई टाइप नहीं है, मतलब किसी कोई किस्म की शायरी नहीं करता हूँ मैं। हाँ, मेरे शायरी में आपको रोमांटिसिज्म जो है वो काफ़ी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो हो मैं अलग अलग जो है टॉपिक्स पर, अलग अलग जो है मौज़ूआत पर जो है गज़लें वगैरह लिख रहा हूँ। तो होता है पहले पहले हम जो है एक ही कोई चीज़ को पकड़कर जो है अपनी शायरी करते हैं, लेकिन एक ये सतही तौर पर है, ठीक है, एक सतही तौर पर है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे आगे मैं शायरी लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे मौज़ूआत जो है काफ़ी अलग अलग किस्म के होंगे, ठीक है, सियासत पे होंगे, कुछ खुदाई पर होंगे, ठीक है, बेवफाई पर होंगे, और ऐसे मतलब आपको जहाँ भी जहाँ भी अतराफ में ऐसा कोई टॉपिक दिखता है कि इस पर कुछ बोल सकते हैं हम, या कोई राइमिंग वर्ड जोड़ा सकते हैं शायरी की, जैसे उर्दू में, तो जहाँ भी दिख जाता है आपको, तो आप उसको पकड़ लेते हैं पॉइंट को और उस पर शायरी अपनी बना लेते हैं। जी जी जी। और ये शायर का जो है जी सर काम होता है। तो शायर होता क्या है? जी सर, सही बात। शायर जो है अल्फाजों का जादूगर होता है। जी सर, जैसे कि एक राइटर को, या किसी पॉलिटिशियन को, या किसी एंकर को, या कोई इंटरव्यूअर
या कोई भी कहीं भी बोलने वाला इंसान, जैसे सांसद में कुछ लोग बोलते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, तो उसी तरह से हमें कहीं भी कुछ कमी दिखती है या कोई चीज़ ऐसी दिख रही है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ पर कुछ बोलना चाहिए, तो उस तरह से उस पर कोई शायरी बना लेना, बस यही शायर का काम होता है। मुझे लगता है कि एक राइटर का काम होता है लिखना, शायर जो होता है वो शायरी के अंदाज में वो चीज़ को बयान कर देता है। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो सर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ, अगला सवाल जी, आप किस शायर या शायरा से मुतासिर हुए हैं? असल में सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही दे चुका हूँ जी सर, पहले दे चुके आप कि मैं जो हूँ पहले मैंने जैसे बताया आपको, काफ़ी बड़े बड़े शायर को सुना है, जी सर, पढ़ा है, लेकिन मुतासिर अहमद फराज साहब से जी काफ़ी हुआ। उनकी जो गज़लें हैं, लिखने का तरीका है, जी सर, और जिस अंदाज में वो शायरी करते हैं। और अभी जो है नए दौर में एक शायर है, काफ़ी मशहूर है, आपने शायद उनको कई बार देखा होगा, सुना होगा, उनके जो है मुशायरे अटेंड भी किए होंगे, तहज़ीब हाफिज़ साहब। तहज़ीब कहाँ के सर? तहज़ीब हाफिज़ पाकिस्तानी। अच्छा। तो तहज़ीब हाफिज़, अहमद फराज और मुझ में, मैं तो उनकी बराबरी का शायर भी नहीं हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो ये चीज़ ये है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है गज़ल, ठीक है, वो रिलेट करता है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम जो है सेम हमारा पढ़ने का तरीका है। जी। कई लोगों से मेरी जो है बातचीत हुई है इस ताल्लुक़ से, और मैंने उन्हें मेरी गज़लें भी सुनाया है। जी। जैसे हमारे टीचर हजरात है, साथ के कलीग्स है, जी। उसके बाद कुछ बच्चे हैं क्लास में, और वगैरह आसपास के अतराफ़ के मोहल्ले बाड़े के लोग हैं, उनको भी सुनाया। तो सर आपका जो तरीका है पढ़ने का, वो मुझे जवाब में बताते हैं कि थोड़ा सा आप चेंज करिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जिन लोगों से मुतासिर हुए हैं, या फिर जो ऐसे शायर जैसे राहत इंदौरी साहब, उनका जो शेर पढ़ने का जो तरीका था, तो वो काफ़ी डिफरेंट था, बहुत अलग था, है ना। बहुत लोग इंस्पायर हुए हमसे। हाँ, वो अपने टोन को जो है, अपनी आवाज़ को कहीं तो भी जो है ऊपर लेकर जाते थे, और एक शेर पे जो है या रदीफ पर जो है नीचे लाया करते थे। तो सबका अपना अपना तरीका है। तो मुतासिर होने का मतलब ये नहीं कि अगर हम उनसे मुतासिर हो गए तो उनका तरीका अपना लिए। जैसे अभी मैं राहत इंदौरी साहब को भी काफ़ी सुना, हर कोई सुनता है, काफ़ी मशहूर शायर है, रह चुके हैं। तो अगर मैं भी उनके साथ शेर पढ़ना चालू करूँ तो लोग तो मुझे क्या कहेंगे, कॉपी करो। भले ही वो शेर मेरे होंगे, अल्फाज मेरे होंगे, जज्बात मेरे, एहसासात मेरे होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका उनका होने से कि जो है आप क्या कॉपी कैट। जी, तो बस टैग लग जाता है। जी, वही नहीं करना है। मुतासिर अहमद फराज साहब से हूँ, पहले से मेरा तरीका जो है जी सर, वो ऐसे ही है पढ़ने का, जैसे तहज़ीब हाफिज़ अहमद फराज साहब है। जी सर। बाकी इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला है जी, कहाँ पर लेके जाते हैं इस फील्ड में। वरना देखो, मुझे कोई सुने या ना सुने, जी, मैं मशहूर हूँ ना हूँ, लेकिन मैं गज़ल हमेशा लिखता रहूँगा। जी सर, लिखता था, लिखूँगा और लिखता रहूँगा। जी सर। तो ये सर के अंदर एक जो पर्सनैलिटी जो सर की दिखने में आई है, जैसे कि आप भी व्यूवर्स इस चीज़ को नोट करेंगे सर के अंदर कि सर किसी के मतलब इतने वो किसी को देखकर उनके जैसा ढल जाना, या फिर किसी की एक्टिंग करना, या किसी की कॉपी करना, सर बताते हैं कि ऐसे मैं वो नहीं करता हूँ। तो ये हर एक प्रोफेशन में, हर एक चीज़, हर एक स्टूडेंट या जो भी सीखने वाला इंसान है, तो उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ को अपनाना चाहिए कि जो अपना खुद का है, जो हम खुद है, वो अपने आप को उसी तरह से रिप्रेजेंट करे लोगों के सामने। जी बिल्कुल। किसी को कॉपी करना है, फिर इंसान के अंदर का वो चीज़ रहती है, जो स्किल रहती है, खुद के अंदर की जो बात रहती है, वो सामने निकल कर नहीं आती है कभी इसको उसको कॉपी करने में। जी, तो यही सर से हमें सीखने को मिलता है। तो सर से मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? सवाल काफ़ी दिलचस्प है, और असल में देखा जाए तो दोनों ही जो मौज़ूआत है, मोहब्बत और इश्क, जी, ये काफ़ी गहरे हैं। जी, ठीक है, और जितना इनकी तशरीह की जाए, एक्सप्लेनेशन की जाए, जी, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में अपने लिए इतना वक्त है कि इसको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन मुख्तसर जहाँ तक मेरे तजुर्बात है, नज़रियात है इन चीज़ों को लेकर, मुख्तसर में अगर इनकी तशरीह करना चाहूँ तो मोहब्बत जो है वो पहला मरहला है जी, अपने जज्बात को जो है पेश करने का। किसी से हम किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो हम उसके पास जाते हैं और उसको जो है मोहब्बत का उससे इज़हार करते हैं। जी, ठीक है, ये पहला मरहला। जी, और उसका जो चौथा मरहला, मतलब पूरे 5 मरहले में आता है ये चीज़ जो है, 5 मरहले मैंने डिवाइड किया है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, मोहब्बत है। जी,
उसका इज़हार करना पड़ता है। जी और चौथा मरहला ये है कि वो इश्क है, जी ठीक है। और इश्क जो है वो मोहब्बत से, जैसे मोहब्बत है, अभी मोहब्बत मुझे किसी भी चीज़ से हो सकती है, जी हर एक आम शख्स को, आज हर एक शख्स को जो है किसी ना किसी चीज़ से मोहब्बत है। जी लेकिन इश्क हमें जो है कुछ मुख्तसर, कुछ चुनिंदा लोगों से या चीज़ों से होती है जी इश्क। और पांचवा जो दर्जा है वो पागलपन का होता है, दीवानगी जिसे हम कहते हैं। तो बस दोनों में यही ज़्यादा फ़र्क है। जी और जो कुछ लैला नहीं। मजनू वाली दीवानी जी जी, लैला मजनू वाली जी वो दीवानगी है, वो दीवानगी। इश्क के ऊपर से आता है, जी। ठीक है। मोहब्बत तो हम सभी किसी न किसी में करते हैं, जी लेकिन इश्क जो है मोहब्बत से काफ़ी परे है, जी 3 हद दर्जे ज़्यादा आगे है। जी तो बस यही थोड़ा सा इन दोनों में जो है फ़र्क मुझे लगता है। जी तो बस यही है मोहब्बत और इश्क। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। तो सर बहुत ही गहराई में गए चीज़ों को लेकर, मतलब डिस्क्राइब करने में भी। तो सर से मैं और एक क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन तो बहुत सारे अगर से देखा जाए तो कुछ हमने लिमिटेड क्वेश्चंस लेकर आए सर से पूछने के लिए, कम करते गए हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत है। सर से एक क्वेश्चन है जो पूछना चाहूँगा मैं कि वो बेवफाई क्या है? बेवफाई, देखिए मेरे नज़दीक बेवफाई का जो मतलब है, जी देखो बेवफाई नाम की मुझे लगता है कि कोई चीज़ होती नहीं है। जी और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो इसलिए कि देखो इंसान बेवफा होता है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे कुछ वादा कर लिया, ठीक है, कोई बात कर दी, ठीक है, तो वो झूठ बोल सकता है, ठीक है, मतलब बेवफाई कर दे, ठीक है। लेकिन जो जज्बात अपने जो जिस्म में है, जो एहसासात हमारे अंग में होते हैं, तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमसे बेवफाई नहीं करते, ठीक है। किसी शख्स से किसी शख्स को मोहब्बत हो गई, अब मोहब्बत हमने तो कर ली है, ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण जो है, अगर सामने वाला जो है हमसे किसी मतलब जुदा हो जाता है, तो उसको जो है बेवफाई का नाम दिया। लेकिन उसके जो जज्बात थे, ठीक है, तो वो तो मतलब वो तो मोहब्बत ही थी, इश्क थी ना, तो उन लोगों ने से वो हमेशा उसके जो है जहन में रहेगा आपका नाम, ठीक है, आपकी शख्सियत, आपसे रिलेटेड हर एक चीज़, ठीक है, कि फला फला शख्स था। अगर वो भूल जाए तो बेवफाई कहलाई जाएगी। लेकिन वो उसे हर बार मतलब मरे दम तक हमें वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। अगर किसी के सामने हम चले गए, ठीक है, फला फला अपना रिलेशन था, एक रिश्ता था, और दूर हो गए किसी कारण से, किसी वजह से, फिर हम जो है उनसे मिले, तो वो हमें पहचान लेगी या पहचान लेगा कि ये फला फला है ना, अपना ऐसा ऐसा था, और अपने साथ जो है इतने हसीन लम्हात या जैसे भी जो भी लम्हात है वो गुजारे थे। अगर वो भूल जाए तो बेवफाई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बेवफा इंसान नहीं होता है, ठीक है, बस जज्बात है, तो जज्बात होते हैं, बस ये तशरीह जो है बेवफाई की। जी। तो सर से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने सुना आपकी शायरी सिंपल अल्फाज में होती है, वजह क्या है? देखिए वजह तो यही है, और वजह काफ़ी सही भी है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हर शख्स को अगर आप कहेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन है, आपने किसी को सुना है क्या, तो वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम, ऐसे बड़े शायर आज की जो जनरेशन है, तहज़ीब हाफिज़ साहब, अली ज़हरियुन है, ठीक है, उन सब का नाम लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि शायरी जो हमारी होती थी, तो वो काफ़ी जो है प्योर उर्दू, जिसको अपन उर्दू में जो है फसी उर्दू में जो है शायरी हुआ करती थी। तो लोगों को वो शायरी जो है समझने में टाइम लगता है, ठीक है, और समझने में टाइम अगर शायरी में लगता है तो हमें मतलब जो शायर है अब उनको दाद कैसे मिलेगी, ठीक है। अब शायर जो है अपना एक शेर कह रहा है और सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको शेर ही समझ में आई, तो आपको दाद कैसे मिलेगी? सही बात, ठीक है। तो इसको जो है सिंपल करना था, तो मैंने आज की जनरेशन को, हम लोग को, नस्लों को जो है देखकर ही सिंपल एकदम सादे जो अल्फाज है मेरी शायरी में यूज़ करना जो है इस्तेमाल करना चालू किया, ताकि लोगों तक मैं जल्दी से कनेक्ट हो जाऊँ, और जो व्यूअर्स है और जो अभी जो अपने ऑडियंस है उनको जो है आसानी से मेरे शेर जो है वो समझ में आ जाए। जी सर, बिल्कुल। तो जिस तरह के हमने देखे कि सर उर्दू को काफ़ी तरजीह देते हैं और उर्दू में ही लिखना पसंद करते हैं, और जितने भी अशार है सर के सिंपल वर्ड्स में लोग सिंपल वर्ड्स में सर उसको बयां करने पर यकीन रखते हैं कि अगर से हम फसी उर्दू यूज़ करेंगे
तो आजकल की जो ऑडियंस है वो उर्दू से काफ़ी दूर होती चली गई और इंग्लिश को या फिर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की चीज़ों में या फिर स्मार्टफोन्स, ये जो टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा मुब्तला है आज की जनरेशन। तो वो फंसी उर्दू नहीं सीख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है डिस्ट्रैक्शन की, शायद डिस्ट्रैक्शन की। उर्दू का जो दर्जा है जी सर इसीलिए भी कम हो रहा है। इसीलिए कम हो रहा है। और सर से मेरी पहले भी बात शुरू थी इससे पहले, पॉडकास्ट से पहले, कि जैसे कि दुकानों के बोर्ड्स होते हैं जी, तो वो कहीं उर्दू नहीं दिखता है उस पर। उर्दू नहीं। तो ये चीज़ों को आजकल जैसे कि बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान में यूज़ होती, मतलब बोली जाती है, तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही फिक्रमंद है जी जी, हर तबके के लोग। तो उर्दू का भी होना चाहिए बिल्कुल, और उर्दू को भी फरोग मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के हिसाब से उनके बोर्ड्स बनाते हैं, उनके बोर्ड्स बनाते हैं नामों के, ठीक है। और उर्दू जो है पहले जैसे हमारे जो बुजुर्गान होते थे, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग थे, तो वो जो है उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो सुनने में भी बहुत मज़ा आता था। जी जी बिल्कुल, ताल्लुक़ रखती थी और कनेक्ट होते थे। लेकिन अब जो है हम उर्दू से दूर होते गए, धीरे धीरे उर्दू से दूर होते गए, तो बस गज़लों से भी दूर होते गए, ठीक है। हम हमारे तहजीब से जो है धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो ये हम पर ही है कि उर्दू को कितना बोलना है, कितना लिखना है, और हमारे जो है डेली लैंग्वेज में हम उर्दू को कैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस मेरी गज़लों के ज़रिए जो है लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि उर्दू जो है और जो अपनी ज़बान है, आम बोलचाल में भी इसका यूज़ हो और गज़लों को फिर से वो मकाम हासिल हो जो पहले हुआ करता था। जी, तो बोलने का मकसद है हमारे इस पॉडकास्ट में जो भी हम बात कर रहे हैं, तो उसका मकसद ऐसा नहीं है कि किसी और लैंग्वेज को हम ना सीखें, सभी लैंग्वेज को सीखें जो ज़रूरत है। लेकिन उर्दू लैंग्वेज जो हम देख रहे हैं आजकल के, उसका यूज़ कम होते जा रहा है। जी जी, तो वो नहीं होना चाहिए, ख़त्म होते जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पुरानी फिल्मों में भी उर्दू का काफ़ी यूज़ होता था, गानों के अंदर, बिल्कुल, और शायरी में, हर जगह। और पहले जैसे कि पंजाब वगैरह हो गए, वहाँ पर भी दुकानों के ऊपर या ट्रक पर उर्दू में नाम लिखे होते थे। पहले बहुत होता था, 1970 के दौर में या 80 के दौर में भी। जी जी। तो वो चीज़ें हम सिर्फ देख सकते हैं वीडियोस के थ्रू या सुन सकते हैं हमारे बड़ों से, लेकिन आजकल की जनरेशन्स जो है तो वो यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम यही चाहेंगे कि उर्दू को फ़रोग मिले। जी बिल्कुल। जी सर, और कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस मेरी एक गज़ल है जिसके चंद अशार जो है आपके नज़र रहेगी और इन व्यूवर्स के नज़र रहेगी। जी जी सर, ठीक है। और चंद ही अशार बोलूँगा क्योंकि मुझे पूना में एक मुशायरा है जहाँ से दावतनामा आया है, जी, तो मुझे वहाँ पर भी पढ़ना होगा ये गज़ल, तो इसलिए चंद ही अशार में आपके नज़र कर पाऊँगा। जी, तो गज़ल जो है और जो अशार है चंद, वो यूँ है जी कि अर्ज़ करता हूँ कि इतने बेरहम ना बनिए, तरस तो खाइए ज़रा, इतने बेरहम ना बनिए, तरस तो खाइए ज़रा, हम कहाँ तेरी गली में रोज़ आया करते हैं जी, मेरी आंखें तरस गई दीदार को तेरे, मेरी आंखें तरस गई दीदार को तेरे, हम कहाँ रोज़ तुझे खिड़की पे बुलाया करते हैं, हम कहाँ रोज़ तुझे खिड़की पे बुलाया करते हैं, तुम जो मुझे तड़पाती हो ना इतना, तुम जो मुझे इतना तड़पाती हो, क्या सबके महबूब इसी तरह तड़पाया करते हैं, क्या बात। और कभी हमसे मुलाकात हुई तो जी भर के देखने देना। जी, सुनिए साहब कि जब हमसे कभी मुलाकात हुई तो हमें जी भर के देखने देना, ऐसे मौके कहाँ रोज़ फराम हुआ करते हैं, ऐसे मौके कहाँ रोज़ फराम हुआ करते हैं। और ये अशार काफ़ी अच्छा है कि देखो ना कितनी चांदनी रात है, आ जाओ ना मिलने, देखो ना कितनी चांदनी रात है, आ जाओ ना मिलने, हम कहाँ तुम्हें रोज़ छत पे बुलाया करते हैं, हम कहाँ रोज़ तुम्हें छत पे बुलाया करते हैं। और लास्ट जो शेर है आपकी नज़र के, देखो ना कितनी चांदनी रात है, आ जाओ ना मिलने, हम कहाँ रोज़ तुम्हें छत पे बुलाया करते हैं, और अब ऐसा भी क्या हो गया कि शर्मा ही गई तुम, और अब ऐसा भी क्या हो गया कि शर्मा ही गई तुम, हम कहाँ रोज़ तुम्हें सीने से लगाया। क्या बात, बढ़िया। तो सर के इसी अशार पर हम इस पॉडकास्ट का एंडिंग करेंगे, और इंशाल्लाह सर से फिर कभी और किसी टॉपिक पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट लेंगे। सर इंग्लिश के भी लेक्चरर है, किसी दिन
ہم ان کو ہمارے چینل پر بھی انگلش کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتے رہتا ہوں, کسی دن سر سے انگلش کا بھی ان کا ایکسپیرینس جانیں گے. بالکل جی انشاءاللہ. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی, شکریہ.